Now come to the next category. What is 6? C. इसको और समझिए. Again, please see the heading this. Easement apart from dominant heritage. What? Easement apart from dominant heritage. Now there are two terms here, dominant heritage, servient heritage. You need to understand this, and you need to understand what is the easement. So please try to understand this. Easement is a right. What? Easement is a right which exists for beneficial enjoyment of a land and is exercised upon the land of another person. समझिए इसको क्या है, देखिए. For example, A who is owner of a house, A who is owner of the house has the right of way upon the land of owned by B, so that he may reach the main road. आपने ऐसा घर देखा होगा कि घर मेरा घर है, लेकिन मेन रोड पर जाने के लिए मुझे आपका जो प्लॉट है वहाँ से रास्ता होकर के जाना पड़ेगा. तो नाउ फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ माई हाउस, मैं अपने हाउस को, मैं अपनी प्रॉपर्टी को ठीक से एंजॉय कर पाऊँ, है ना, इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपके लैंड से होकर के गुजरूं. तो आपके लैंड आप ही का कहलाएगा, आप ही के कब्जे में है, आप ही उसके ओनर रहेंगे, लेकिन मेरे पास क्या है? ओनली राइट ऑफ वे है. किस पर हुआ? अपॉन द लैंड ओन्ड बाय सम अदर पर्सन, इन केस बी. यहाँ पर बी के पास है. तो ये जो राइट ऑफ वे हुआ, इट इज कॉल्ड ईजमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड easement is a right. I hope you are getting now. Easement is a right which exists for the beneficial enjoyment of a land, beneficial enjoyment of my house. I have a right, it means easement is my right which exists for the beneficial enjoyment of my land and is exercised upon your land. For my enjoyment of my land, I am exercising दिस राइट अपॉन योर लैंड. तो दो प्रॉपर्टी हो गई इसमें. अभी समझ रहे हैं आप? एक प्रॉपर्टी वो भी जिसके एंजॉयमेंट के लिए राइट एग्जिस्ट करता है, और एक वो प्रॉपर्टी हो गई जिस पर वो राइट एक्सरसाइज किया जाएगा. और इसीलिए इसको हम बोलते हैं, दिस इज डोमिनेंट हेरिटेज. द लैंड और द टेनमेंट, यानी कि हाउस, for whose beneficial enjoyment this right exists is called dominant heritage. तो जो मेरा घर है वो क्या कहलाएगा? dominant heritage हो गया technically. What it is called? dominant heritage. and जो दूसरा घर है, the land or tenement upon which the right exercise is called servient heritage. Are you getting this point or not? See, please see this slide. Suppose it is the house of A and it is the house of B. And this is road. To come to this road, A has to pass upon the land of B. इस रोड पर आने के लिए B को क्रॉस करना पड़ता है एक B का हाउस. तो नाउ यू कैन से A इज एक्सरसाइजिंग राइट अपॉन द लैंड ऑफ B. तो दिस राइट ऑफ यूजिंग द लैंड ऑफ B is called easementary right of A. And this property of A is called dominant heritage. The property of B is called servient heritage. Servient heritage upon what? Means property upon which the right is exercised. In this case, right is exercised upon the land of B. Therefore, it is called servient heritage. Now, this what is dominant heritage? For whose beneficial enjoyment this right is exercised? In this example, this right is exercised for the beneficial enjoyment of A. Therefore, A is called dominant heritage, B is called servant heritage. What is the right? Right of way. Now, in this case, you will see technically we called is what? Easementary. So, easement is a right which exists for the beneficial enjoyment of the land, यानी कि land of A, and is exercised upon the land of another person, that is B. तो आप प्लीज रेज हैंड अगर आपको ईजमेंट राइट का मतलब समझ में आ गया. तो डोमिनेंट हेरिटेज समझ में आ गया, सर्वेंट हेरिटेज समझ में आ गया,
नो इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये है, यहाँ पर राइट ऑफ वे हेयर is essentially connected with the property of A. You can say right of easement is essentially connected with dominant heritage. है कि नहीं है? You cannot separate it. Right of easement in this case is part and parcel of dominant heritage. Now what this section 6C is dealing, easement apart from dominant heritage. You see this, I give it different color, apart from dominant heritage. Easement means mere easement, केवल right of way अलग से मिल जाए. Is it possible? Not possible because of section 6. Section 6 says कि this kind of transfer is not transferable, possible नहीं है वो. This is so in this case you will see this. See, A's right of way upon land owned by B, not his personal right, exists for beneficial enjoyment of A's house, is a right attached to the house. तो अगर आप हाउस को बेचोगे, जिसको भी हाउस बेचा जाएगा, वो ए का घर बेचा जाएगा, उसको वो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ ईजमेंट मिल जाएगा. केवल राइट ऑफ ईजमेंट कि मैं आपको 1 लाख रुपए में यहां से गुजरने का राइट देता हूं, वो राइट ट्रांसफरेबल नहीं होगा. डोमिनेंट हेरिटेज के साथ में ही वो राइट ट्रांसफर होगा हमेशा. वो since this right is part and parcel of this house, that is dominant heritage, it cannot be severed or detached from it. इसको अलग करा ही नहीं जा सकता because it is the part and parcel. dominant heritage का भाग ही है वो. अगर आप इसको देखेंगे, अगर if you want to sell it, suppose this property को imagine कीजिए, आपसे कह दे कि I am selling this property A, तो you will ask how will I reach the road? मैं अपने घर में एंट्री कैसे करूंगा? कहते ये हमें नहीं पता. वी आर सेलिंग ओनली दिस यू. आप ड्रोन खरीद लीजिए, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर लीजिए, पैराशूट ड्रॉप कर लीजिए, वो हमें नहीं पता. तो दिस प्रॉपर्टी इज यूजलेस फॉर यू बिकॉज यू कैन नॉट एंजॉय दिस अनलेस यू गेट दिस द राइट ऑफ वे फ्रॉम हेयर. है कि नहीं है? तो दिस राइट ऑफ वे, इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो तभी होगी जब आपको राइट ऑफ वे मिल रहा होगा. ये अदरवाइज इज यूजलेस. आप इसके 10,000 रुपये भी नहीं देंगे अगर राइट नहीं मिलेगा आपको, तो ये क्योंकि आपके लिए यूजलेस है वो. जैसे ये राइट मिल जाता है, हो सकता है आप इसके 10 लाख दे दें आपको, बिकॉज नाउ दिस प्रॉपर्टी बिकम्स यूजफुल टू यू. तो देयरफॉर आई एम सेइंग दिस राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ वे इज द पार्ट ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज एंड इट कैन नॉट बी सीवियर्ड. इसको अलग नहीं किया जा सकता इसको कि राइट ऑफ वे मैंने आपको भेज दिया, डोमिनेंट हेरिटेज मैंने आपको भेज दिया, कि अब ना आपके काम का ना आपके काम का. डोमिनेंट हेरिटेज आप रखो और राइट ऑफ एंट्री आप रखो. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल बिकॉज मियर नेचर, जो नेचर है राइट की, वही इसको परमिट नहीं कर रही है. कुलदीप बात समझ आ रही है? यारी बात है. किसी को पूछना है यहाँ पर कुछ? सही. इनका क्वेश्चन क्या है कि ये जो इनका क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास जो कॉमन स्टेयर्स हैं, जो कॉमन स्टेयर्स हैं, क्या वो उस पर राइट ऑफ वे है? क्या वो ईजमेंटरी राइट माना जाएगा? है ना. सी, इनके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है. वो दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. राइट ऑफ ईजमेंट में क्या होता है? राइट ऑफ एरिजेंट में देयर इज ए डोमिनेंट हेरिटेज एंड देयर इज सर्वेंट हेरिटेज. राइट ऑफ ईजमेंट में यू सी व्हाट इज द डेफिनेशन. ऑल्दो दिस इज नॉट द क्लास ऑफ ईजमेंट, बट स्टिल easement is a right which is exercised upon the land of another person. So it is an essential part that there should be some servant heritage also. So because this is a common property, this property is common property, you cannot say it is servant property, servant heritage. So therefore we cannot include it into that category. ठीक है. एनी अदर कैटेगरी किसी की? पार्किंग राइट्स वो सेम बात होगी. पार्किंग राइट्स अगेन देयर आर कॉमन प्रॉपर्टी. वो यू हैव द प्रॉपर्टी, यू हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी एज वेल. जब आप कॉमन पार्किंग में जाते हैं तो वो जो आप उसके जॉइंट मेंटेनेंस भी देंगे आप उसकी, आप उसमें आपने उसका जब आपने फ्लैट खरीदा होगा
then you must have given a consideration for that also कि you are getting right of parking here. So you are not enjoying the right in another's property. Easementary right means when you enjoy right in another's property, such right which is essential for the enjoyment of your property. आपकी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट तभी हो सकता है जब आपको राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी इसमें. समझ में आ गई बात? तो ये जो दोनों पार्ट हैं इसको मत भूलिएगा. ईजमेंट्री राइट में आप इट इज एक्सरसाइज अपॉन द लैंड ऑफ अनदर. तो लैंड ऑफ अनदर इज ऑल्सो नेसेसरी इन कॉमन पार्किंग, कॉमन स्टेयर्स. दीज आर द नॉट द लैंड ऑफ अदर्स. इट इज योर प्रॉपर्टी एज वेल. यू कैन हैव अ राइट देयर, है कि नहीं? यू हैव पेड फॉर दैट और यू आर पेइंग रेंट फॉर दैट, वट एवर. और कुछ तो फिलहाल आप इसमें आइए. देखिए, सो आई थिंक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई सारी. तो राइट नाउ आई अगेन विल फोकस ऑन दिस. व्हाट इज बीइंग प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 6C, दैट दिस इज ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज. Dominant heritage is not being transferred. It means no right, whether absolute or partial, is being transferred from the dominant heritage. What is being transferred? Only easement, which is prohibited by section 6. You cannot transfer this easement apart from dominant heritage. It means what? If this is, इसको contrary करते हैं इसको अब. When dominant heritage itself is transferred, easementary right attached to it is itself transferred. Then you are when you are transferring dominant heritage, it means what? You are transferring the easementary right itself. Got it or not? So इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और है, वो देख लीजिए आप. ये there are two words, transfer of easement, creation of easement is anything. Creation of easement. Clause C prohibits what? Transfer of easement. It is not saying that you cannot create easement. You cannot create. Creation of easement is not like this. See, when the owner of the dominant heritage releases the easement in the favor of servient heritage. What? समझिए इस बात को. Owner of dominant heritage in case E, हमारे एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल दिखाया मैंने आपको, ये वाला भी, ए वाला, ये A, he is the owner, A is the owner of dominant heritage. Now what he does, he releases easement in favor of servient heritage. कि तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ यहां का रास्ता मैंने छोड़ा आपके लिए. Releases easement. Why? Because he is saying कि भाई because of this right I am not getting the, क्योंकि जो जिसको भी बी बेचना चाहता है वो हमेशा ये कहता है कि भाई ए का राइट है, ए का राइट है ऐसे निकलने का. नो ही ए सेज ओके आई विल मेक माई राइट टू समवन, कहीं और से रास्ता बना लूंगा मैं, दिस दैट आई विल मेक आउट अदरवाइज एंड आई एम रिलीजिंग माई राइट हेयर नाउ. तो दिस सच काइंड ऑफ राइट, सच काइंड ऑफ एक्टिविटी क्या कहलाएगा? दिस इज रिलीज द ईजमेंट इन फेवर ऑफ सर्विएंट हेरिटेज. एंड नाउ यहां पर क्या कहलाएगा? इट इज नॉट ट्रांसफर, इट इज व्हाट? एक्सटिंक्शन ऑफ द राइट. मैंने अपना अधिकार यहां पर खत्म किया है, इसको हम ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे. और दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई एम एक्सटिंक्टिंग माई राइट हेयर. मैं अपना अधिकार यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ. मैंने अपना, क्योंकि अधिकार तो मेरा था वो, मैं यहाँ पर केवल क्या कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं जाऊँगा यहाँ पर. अब मैं अपना अधिकार एक्सटेंड कर रहा हूँ. आई एम एक्सटेंडिंग माई राइट. आई एम नॉट ट्रांसफरिंग माई राइट कि तुम पास करना है यहाँ पर. अब आई एम एक्सटेंडिंग. तो सच काइंड ऑफ क्रिएशन को कह लीजिए, या सेसेशन ऑफ इजमेंट कह लीजिए, या एक्सटिंक्शन ऑफ राइट कह लीजिए, दिस इज पॉसिबल. सही मेरी बात आपको नहीं?
तो कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से किसी पॉइंट पर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम में मिले आपको ऑप्शंस में थे, तो प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग ये। तो दिस इज व्हाट बी एंड सी।